میں نے آپ کے سامنے 22واں پارہ سورہ احزاب کی 32 نمبر آیت اس آیت کریمہ میں آپ کے 2-3 مسئلے جو ابھی تک حل نہیں ہوئے 1400 سال سے حل نہیں ہوئے 1400 سال کے پڑے ہوئے مسئلے آج اتنے بڑے عظیم اجتماع میں دلیل کے ساتھ اسے حل کرنا چاہتا ہوں 1400 سال کے مسئلے 1-2 دن کے مسئلے نہیں اور دلیل قرآن سے ہوگی قرآن کے بغیر دلیل نہیں ہوگی اور میں پورے مجمع سے توجہ چاہتا ہوں کہ جو بحث میں نے کرنی ہے وہ جا کے اپنے قرآن میں جا کے دیکھیے آپ کے قرآن نے کیا لکھا اور میں دلیل سے کیا کہتا اس آیت کریمہ اپنے قرآن میں دیکھیے اپنے انشاءاللہ 22ویں پارے سورہ احزاب میں سورہ احزاب اس آیت کریمہ میں اللہ رسول کی بیویوں سے خطاب فرما رہا میرے خیال ہے رسول نہ ہوتے تو بیویاں کہاں ہوتی جو فرمایا رسول کی بیویوں سے اللہ خطاب فرما رہا ہے اور کب خطاب فرما رہا ہے سورہ احزاب میں سورہ احزاب مدینے میں نازل ہوئی سورہ احزاب مدنی ہے مدنی مکی نہیں معلوم ہوا خطاب ان بیویوں کو ہے جو مدینے میں تھی خطاب ان بیویوں کو ہے تھوڑی جی تسی بیدار ہو کے سماعت بیٹھ لیتے صحیح کو جگہ دے دو میرا پتر جگہ دے دو مدینے میں جو بیویاں تھیں ان کو خطاب ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ مدینے میں نہیں بی بی پاک کا انتقال مکے میں ہو گیا اس خطاب میں جناب خدیجہ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا نہیں باقی بیویوں کو خطاب ہے کیونکہ یہ مدینے میں نازل ہوئی ہے سورہ احزاب کیا خطاب ہے یا نساء النبی ایک عجیب حرف خالق نے استعمال کیا خالق فرما رہا ہے یا نساء النبی اے نبی کی بیویوں 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 یہ بیویوں بھی ایک طرح کی جمع کی لفظ اے رسول کی بیویوں بیویوں رسول کی بیویوں دیکھیں ان کو ازواج کی لفظ سے تعبیر نہیں کیا ازواج بھی عربی کی لفظ ہے یا ازواج النبی کہہ سکتے تھے قرآن نے فصاحت و بلاغت کہہ کر ازواج کی لفظ کو صرف نہیں کیا نساء کی لفظ کو صرف معلومات ہے جتنی بلاغت نساء میں ہے ازواج میں نہیں سبحان اللہ آئے حیدری آئے نبی کی نساء بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں میں اے نبی کی نساء اے نبی کی بیویوں کون کہہ رہا ہے اللہ اور اللہ بھی ندا دے کے کہہ رہا ہے اگر آپ خوش ہو جائیں تو میں جلدی سے لفظ کہہ دوں ندا دی جاتی ہے دور والے کو اور کلام کیا جاتا ہے قریب والے خوش ہو جاؤ میرے بھائی خوش ہو جائیں ندا دی رہی ہے دی جا رہی ہے اے نبی کی بیویوں بیویوں بیویاں کہہ کر ندا وہاں دی جاتی ہے جہاں کوئی طلب ہو معلوم ہوتا ہے رسول کی ازواج سے اللہ کوئی شاید طلب چاہتا ہے کوئی بات ہے جو طلب میں پکار کے لینا چاہتا ہے اور طلب وہاں کیا جاتا ہے جہاں پہلے نہ ہو یہی توجہ میں چاہتا ہوں
रसूल की बीवियों, अजवाज नहीं कहा, निसा कहा। निसा, निसा रिश्ते को जाहिर नहीं करती, लफ्ज़ निसा, निसा सिर्फ को जाहिर करती। साहिबान इल्म व बसीरत बैठे, निसा की लफ्ज़ सिर्फ रिश्ते को जाहिर नहीं करती, सिर्फ को जाहिर करती है। इसी निसा को अल्लाह ने फिर ताकीद में कहा, या निसा नबी है, ऐ नबी की निसा, लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा। इस वक्त जितनी निसा हैं, कोई एक भी तुम जैसी नहीं है। कोई निसा एक लहादन एक, कोई एक निसा भी लस्तुन्ना नहीं है। इस वक्त जितनी निसा है, कोई एक निसा भी तुम जैसी नहीं है। तुम बहुत ही मुमताज हो, तमाम निसा से मुमताज हो, लेकिन शर्त ये है तुम ना कि तुम तकवा इख्तियार करो। और नहीं फरमा रहा है, तुम ना तुम तकवा इख्तियार, मैं नहीं बहस करूंगा तकवे पर, कि तुम तकवा इख्तियार करो। तकवा, अब पूछा गया मौला तकवा क्या है? सरकार ने फरमाया तकवा ही इकरार विलायत अली है। अभी बहस करते तकवा खुश नहीं हुए। लोग देखे मेरे भाई, लोग अभी बहस करूंगा मैं। लोग तकवा सिर्फ इकरारे विलायत अली नहीं है, अली के दुश्मनों की इताअत से इनकार का नाम तकवा। तुमना शर्त है कि तुम तकवा इख्तियार करो। बस आगे नहीं बढ़ना, इतनी काफी है। इसी में हमारा वक्त पूरा हो जाएगा, क्योंकि जितना वक्त है उतना मैं अर्ज करूंगा। ऐ नबी की निसा, मालूम होगा जनाब खदीजतुल कुबरा इस खिताब में नहीं है, वो तो मक्के में इंतकाल फरमा गई थी। जो रसूल की बीवियां थी मदीने में, उनसे खिताब है, और उन मौजूद थी फरमाया। जो बीवियां वहां थी उन्हें लफ्ज़े निसा कहा गया। निसा, निसा रिश्ते को जाहिर नहीं करती, सिर्फ को जाहिर करती है। सिर्फ को, खुदा के लिए ऐसी मुश्किल बातें सुना करें मेरे भाई, सिन्फ को जाहिर करती है। निसा की सिन्फ में 3 रिश्ते आते हैं, 3। निसा वो होती है, पहले बेटी हो, फिर जौजा हो, फिर माँ हो। 3 रिश्ते, पहले बेटी हो, फिर जौजा हो, फिर माँ हो। अब अल्लाह जिनको खिताब करके निसा कह रहा है, वो बेटी भी है, जौजा भी है, मगर माँ नहीं है। मेरे ख्याल समझ नहीं आई है। बेटी भी है, जौजा भी है, मगर माँ नहीं है। फिर भी अल्लाह ने इन्हें निसा कहा। निसा, बेटी भी, बेटी है ना, जौजा भी, माँ नहीं है। माँ नहीं थी तब अल्लाह ने खिताब किया, माँ नहीं बनी थी, अल्लाह ने उन्हें निसा कहा। पहले इनको निसा कहा। जब निसा कहा, कोई गल समझ आंदी भी है या नहीं? निसा कहा, निसा इनको जो 2 रिश्तों से बेटी और जौजा के हवाले से निसा कहा गया, इसी हवाले से इनको फायदा मिला। बीबी मरियम को भी निसा कहा गया। इस काल अच्छा नहीं लग रहा। इस कालतल मलाइका तो या मरियम हो इन्नल्लाह हस्तफा के
वत्वहरके वस्तफाके अला निसाइल आलमीन। जनाबी वो वक्त याद करो जब मलाइका ने मरियम से कहा इन्नल्लाह हस्तफाके, अल्लाह ने तुझे चुन भी लिया है, वत्वहरके पाक भी रखा है, वस्तफाके चुन भी लिया है। ये दो चुनने मुझे आते हैं बयान नहीं करने, चुन लिया है अला निसाइल आलमीन, आलमीन की निशा से, जो उनकी जिंदगी में आलमीन थे उनकी निशा से चुन कर अल्लाह ने मरियम को बतूल बनाया। सैयदा आलमीन में नहीं आती, आलमीन से पहले है। सैयदा ताहिरा आलमीन, आलमीन से पहले है। जनाब मरियम चुनी गई निशा से, मरियम को भी निशा कहा गया। निशा, निशा के सवाले से कहा गया कि जनाब मरियम बेटी भी हैं, माँ भी हैं, मगर ज़ौजा नहीं है। जल समझ आइए, जनाब मरियम बेटी भी है, माँ भी है, ज़ौजा नहीं है, शौहर नहीं है। ज़ौजा, ज़ौजा की लफ्ज़ इनके लिए ज़ौजा होना नहीं है, लेकिन माँ होना है। मालूम हुआ कोई एक कमाल ऐसा भी होता है कि ज़ौजा भी न हो और माँ भी कहलाए। यही मसला हल कर रहा। जनाब मरियम बेटी भी है, माँ भी है, ज़ौजा नहीं है, लेकिन फिर भी निशा है। रसूल की बीवियां बेटी भी हैं, ज़ौजा भी हैं, माँ नहीं है, वो भी निशा, बीबी मरियम भी निशा। फिर मैं जुमला कहूँ, अगर ये रसूल की जिंदगी में मुबाहले में होती ना रसूल की अज़वाज जा सकती थी, ना मरियम जा सकती थी, क्योंकि सिन्फ में 3 रिश्ते जरूरी, बेटी भी हो, ज़ौजा भी हो, माँ भी हो। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरा ख्याल ये मुश्किल बातें जनाब मरियम निसा हैं, बीबी मरियम निसा हैं, मगर सिर्फ बेटी हैं, माँ हैं, ज़ौजा नहीं है। जो माँ बनवा सकता है क्या शौहर नहीं बना सकता? और मानो दुनिया वालों, अल्लाह का ये इरादा है कि मरियम सिर्फ माँ रहे, ज़ौजा ना बने। ज़ौजा ये बड़ा मसला है, मैं हल करूंगा। बीबी मरियम सिर्फ माँ रहे, कितना बड़ा निजाम बदल के कहा ईसा इब्ने मरियम। आज किसी का माँ का नाम ले, बाप का ना ले, लड़ाई हो जाएगी। अल्लाह कह के खुश हो रहा है और कुरान बना रहा है। कोई तो मसला है जिस मसले को अल्लाह हल करना चाहता है। जनाब मरियम को माँ बना के, ज़ौजा हटा के, जनाब मरियम मुबाहले में नहीं जा सकती। मुबाहले में सिर्फ वो गई जो बेटी भी है, ज़ौजा भी है, माँ भी है। फिर मानो रसूल के घर में कोई ज़ौजा ऐसी नहीं थी जो सैयदा के मुकाबले में मुबाहले में जाए। कोई ज़ौजा नहीं, मुबाहले में नहीं गई। कौन गई? फकत जनाब सैयदा ताहिरा, जिनमें 3 रिश्ते हैं, बेटी, ज़ौजा, माँ। यही से मैं फिर एक बहस का थोड़ा सा हवाला देता हूँ। मुबाहला हुआ ही जनाब ईसा की वजह से है। अल्लाह ने मुबाहला खुद करवाया है, खुद। क्या ये बातें मुश्किल है, सुनना अच्छा गवारा नहीं कर, क्या करो। ये सुना करें मेरे पुत्र, पूरा निजाम ये चलता आ रहा है। जनाब मरियम का शौहर नहीं है, क्या अल्लाह ताला एक शौहर पैदा नहीं कर सकता? कर सकता था। जब माँ बगैर बाप के बना सकता है तो फिर कोफ भी बना सकता है। कोफ खुद नहीं बनाया। मालूम हो गया जनाब ईसा अलैहिस्सलाम, तो जो फरमाया मेरे इतना बड़ा मजमा, बाप के परासिस से पैदा नहीं हुआ,
जो बात से पैदा होता है वो खल्क कहलाता है। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम खल्क से पैदा नहीं हुए, अम्र से ईजाद हुए। ईसा अलैहिस्सलाम खल्क से पैदा नहीं हुए, अम्र से ईजाद हुए हैं। मैं इतने बड़े मजमे में मसला आपका हल करता हूँ। मालूम हो गया जनाब ईसा जब अम्र से बने, फिर मानो जनाब मरियम के कमरे में कोई उलेल अम्र है। जनाब मरियम के कमरे में कोई उलेल अम्र है। अब जिन्होंने तर्जुमा किया है कि जनाब जिब्रील थे, उन्होंने जेब मरियम में रूह फूंकी, गलत। जनाब जिब्रील उलेल अम्र नहीं, जनाब जिब्रील उलेल अम्र नहीं। जिब्रील तो अमीन है, कुरान के पहुंचाने में वही पहुंचाने का अमीन है। जिब्रील उलेल अम्र नहीं। फिर मानो कोई उलेल अम्र है। जब उलेल अम्र है ना, फिर जनाब जिब्रील नहीं है। जनाब जिब्रील कमरे में है ही नहीं। मेरी आवाज दूर तक जा रही है और जानी चाहिए ताकि मसले हल हो जाए। 1400 साल से यही तर्जुमा लिखा है। जनाब जिब्रील ने मरियम के रूह में जेब में रूह फूंकी, कहाँ लिखा है? मुझे दलील देना, मैं दलील देना चाहता हूँ। वो जो रूह फूंकी है वो वहां कोई उलेल अम्र खड़ा है, और जिसने ईसा की रूह फूंकी है वो ईसा से अफजल है। और ईसा अलैहिस्सलाम नबी भी है, रसूल भी है, साहिब किताब भी है, साहिब शरीयत भी है। जिसने रूह फूंकी है वो हर दर्जे में ईसा से अफजल है। फिर मानो जिब्रील नहीं। फिर जुमला कह दूं, जिसने मरियम के कमरे में रूह फूंकी उसे अली इब्न अबी तालिब। मेरा ख्याल समझ देर से आई है। कौन है रूह फूंकने वाला? कौन है रूह फूंकने? अली इब्न अबी तालिब। अच्छा, रूह जिब्रील का कहें तो आप खुश होते हैं, जनाब अली का कहें तो नाराज हो जाते हैं। क्या कहें इनको, क्या कहा? जनाब जिब्रील दूसरी दलील, जनाब जिब्रील ने तो औलाद की तलब ही नहीं है। जिब्रील के बेटे होते हैं, जिब्रील की शादी होती है, बच्चे हैं उनकी? है ही नहीं। जब है ही नहीं तो ऐसे को वहां भेजना जहां औलाद देनी है। ये खिलाफ आदिल भी है, खिलाफ हिकमत भी है। फिर वहां वो खड़ा हुआ है जिसमें औलाद की तलब है। या नबी वैसे मुझे आती है, वो वक्त न ले ज्यादा। अब जनाब ईसा अलैहिस्सलाम खल्क से नहीं बने। खुदा के वास्ते ये सुन लो, ईसा अलैहिस्सलाम खल्क से नहीं बने, अम्र से बने हैं। अम्र से बना के कहा ईसा चौथे आसमान पे बैठ के इंतजार कर उलेल अम्र की। हम समझ आइए थोड़ी। ईसा अलैहिस्सलाम इंतजार कर उलेल अम्र की। अब भी जनाब ईसा अलैहिस्सलाम बैठे हैं या नहीं? इंतजार में हैं या नहीं? मैं जुमला कह के आपको वजाहत कर दूं कि जनाब ईसा की माँ नहीं है। माँ नहीं है, माँ है, बाप नहीं है। लेकिन जिसका इंतजार है उसकी माँ भी है। बाप खुदा करे मुफस्सरीन को समझ आ जाए। मैंने तफसील से लिखी है बहस यही, मुफस्सरीन को नहीं समझ आई। जनाब जो मुंतजर जो है उसकी माँ भी है, जनाब नरगिस खातून, और जनाब हसन अस्करी अलैहिस्सलाम। ये माँ भी है, बाप भी है। मेरे अशरे हैं इस पर, अशरे से माँ भी है। और गौर फरमाए से माँ भी है, बाप भी है। लेकिन इंतजार जो कर रहा है वो बना है अम्र से। ईसा अलैहिस्सलाम अम्र से बनने वाला है, अम्र से। वो है मुंतज़िर।
फिर मानो जो मुंतजर है वो नुतफे से नहीं बनता। हाय हाय हाय, वहां तो माँ ही नहीं है, बाप ही नहीं, वहां माँ है बाप नहीं है, यहाँ माँ भी है बाप भी है या नहीं? जब है जो इंतजार कर रहा है वो तो बने अम्र से, और इंतजार भी 12वें का। 12वें का इंतजार दलील है कि पिछले जितनी 11 हैं 12वें जैसे बने हैं। जितने पीछे इमाम हैं वो जनाबे 12वें की तरह बने हैं, सारे एक नहीं सारे। पहला भी अम्र से, दूसरा भी अम्र से। जब मेरा 12वां आएगा, बात आगे बढ़ाते हैं 2-3 मिनट और, आएगा ना आगे कहेगा लोगों हाजा बकियतुल्लाह है फिल आलमीन, ये 12वां ही बकियतुल्लाह फिल आलमीन है। फत्तबिऊहु व अतीऊहु, इसकी इताअत भी करो, इसकी पैरवी भी करो। कितनी अंग्रेज मोमिन हो जाएंगे, मुस्लिम नहीं। हाय हाय, मोमिन हो जाएंगे मोमिन। जब मोमिनों की सफ़े लगेगी, सफ़े, मेरा आका कहेगा 12वां इमाम, तकब्बल सलाह या यब्न मरियम, मरियम के बेटे आओ मुझे नमाज पढ़ाओ। जनाब मरियम का बेटा ईसा 2 कदम हट के कहेगा अगर मैं खड़ा हो जाऊं आगे मेरी नमाज नहीं होगी। अल्लाह करे समझ आ जाए दुनिया। अगर 12वें की नमाज ईसा अलैहिस्सलाम पीछे नहीं होती, फिर अली अलैहिस्सलाम की नमाज के बारे में फैसला खुद कर लो। बस थोड़ी जी ग्रामर पढ़ना है, अब मैं ग्रामर पढ़ने लगा और जरूर पढ़नी है और जरूर सुनानी है। जो नहीं भी सुन रहा आंखें बंद कर ले, सुनाऊंगा, ये जरूरी बात है। शर्त है ए नित्ता कहे तुन्ना, रसूल की बीवियों तुम मुमताज तब हो जब तुम तकवा इख्तियार करो। अब तर्जमे उठाए मेरे भाई, जितने तर्जमे इस वक्त पाकिस्तान में है, हिंदुस्तान में है, सारे मेरे पास मौजूद हैं, क्योंकि मैं लुगत में लिख रहा हूँ, तफसीर इंशाल्लाह मुकम्मल हो गई है। देखिए उन्होंने लिखा है ए नित्ता कहे तुन्ना, तुम परहेजगारी इख्तियार करो। नंबर 2, तुम नेकी इख्तियार करो। सही तर्जमा ना हो तो मैं जिम्मेदार। तुम भलाई इख्तियार करो। और मुफस्सरीन से वक्त नहीं, मैं कहना चाहता हूँ तकवे का नाम ना परहेजगारी है, ना नेकी है, ना भलाई है। तकवा और है, परहेजगारी और है। तकवा और है, साहिबान बसीरत बैठे हैं, नेकी और है, भलाई और है। ये मुझे पता है, किस्में मुझे मालूम है। ये कनाअत की किस्में, इसकी इफ़त की किस्में हैं 12, उन 12 में ये आती हैं। ये तकवा नहीं है, इंशाल्लाह मैं बहस करूंगा वहाँ। ये तकवा के माने हैं मुहर्रमात से बचना, हराम चीजों से बचने का नाम तकवा है। लुगत में जाके देखें, सबसे बड़ा हराम ही इनकार विलायत अली। समझ आइए थोड़ी, क्या कहने हैं? तकवे का ये माना नहीं जो ये लिख रहे हैं, ये इफ़त के माने में आती है। इफ़त के माने। एक और लफ्ज़ आखिर, इबादत तकवे में नहीं आती, सदाकत तकवे में नहीं आती। ये अदालत की किस्म है। अदालत की 12 किस्में हैं, तो सारी दसो तुसी होर ही चुप हो जाओ। हाय हाय हाय। नमाज, रोजा, इबादत अदालत की किस्म है, इबादत तकवा नहीं। दूसरी लफ्ज़ कहूं, तवक्कुल तकवा नहीं, सदाकत तकवा, सच बोलना तकवा नहीं, हया तकवा नहीं, सखावत तकवा नहीं,
तवद्दुद, खुश हो जाए, तवद्दुद ते बा दाल दाल, फिर लुगत में तवद्दुद के माने है जब नाम आए ना उंगलियां चूमना, ये तकवा नहीं। हम तो खुश हो गए पुत्र। तवद्दुद अदालत की किस्म है, इबादत अदालत की किस्म है, अदालत की किस्म। इबादत तकवा नहीं, रोजा तकवा नहीं, हज तकवा नहीं, ये उसकी अदालत में आता है, तो उसने हुक्म दिया है। ठीक है, हया कनात उसमें आता है, इफ़्फ़त में आता है, हया तकवा नहीं। अच्छा, लोग इन 14 की बड़ी हया करते हैं, हया तकवा नहीं। तकवा और है, तकवा बर्दाश्त करते हैं, तकवा और है, सखावत और है, तकवा नहीं। हया तकवा नहीं, इबादत तकवा नहीं, सखावत तकवा नहीं, नहीं तकवा है इकरार विलायत अली। शाह जी हम इजलास कह देता हूँ, यही जब ऐसा मुझे पूरी मजलिस मैंने पढ़नी है इस पर। ए देखे जनाब अली आए, साहबा खड़े हो गए, रसूल खुदा खड़े हो गए, जो ही करीब आए जनाब अली ने पेशानी अली को चूम कर अपने साथ बिठा के सहाबा में ऐलान किया, ए सुनी हुई हदीस आपकी लोगों, अगर कोई शख्स ओहद के पहाड़ जितना सोना राह खुदा में दे, अल्लाह जाने कितना बड़ा सखी है, सखी है, सखावत की उसने या नहीं, ओहद के पहाड़ जितना सोना राह खुदा में दे। मैं यही कह रहा हूँ, सखावत तकवा नहीं, सोना राह खुदा में दे। इतनी इबादत करे कि पेट कमर से लग जाए, इबादत तकवा नहीं। इतनी रोजे रखे कि पेट खुश्क हो जाए, रोजा तकवा नहीं। फरमाया सफा और मरवा के दरमियान में बेगुनाह कत्ल कर दिया जाए। ऐ अली, अगर उसके दिल में तेरी मोहब्बत नहीं, जन्नत तो बजाय खुद जन्नत की खुशबू भी नहीं। कहाँ गई सखावतें, कहाँ गई इबादतें? नहीं समझ आई, कहाँ गई नमाजें? नमाजें न देखा करो, पर रोजे न देखा करो, ये देखा करो या अली मदद कहता है। नमाजें न देखा, बैठ जाओ पुत्र, बैठ जाओ, सही बैठ बैठ बैठ, ले लो आगे बहाने से उनको समझ आइए। बस बस चाहे मेरा तकरीबन अभी 2-3 मिनट का 15 मिनट बाकी है। 1 मिनट आगे। नेकी तकवा नहीं, नमाजें तकवा नहीं। उनको समझ आइए हदीस या नहीं, जिन्हें आप इन्हें आई मौजा कर थे। खुदा के लिए तकवा इकरार विलायत अली है। बस एक दलील और, तकवा के माने डरना। यहाँ डर नहीं है, ये 9 तक है, डर नहीं है। ये 9 तक नहीं, 9 तक, 9 तक है, 9 तक। नहीं समझ, जहाँ 9 मुकम्मल होता है उसे फातिमा कहते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ईमान वालो अल्लाह से डरो। डरो मालूम होता है तकवे के माने डर के, डरो। और कितना डरो? डरना भी अल्लाह से है। जितना कमाल इलाहिया उसे समझ आता जा रहा है, उसी मेयार का डरो।
دیوانوں پہ ڈر نہیں ہے چونکہ عقل ہی نہیں ہے. ان کا نقل نہیں ہوتا. ڈرو کی لاس اسی لیے پیش کیا اللہ کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. تقوی کا معنی بھی ڈر. اور میں دوسری آیت پڑھتا ہوں. خشیت ہے خشیت خیشین یتے لو انزلنا هذا القرآن على جبل الله رأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. خشیہ مانے ڈر. اگر ہم جب آسمان سے قرآن ہم پہاڑوں پہ اتارتے تو خوف الہی سے پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے. تو خشیہ کے معنی ڈر. اگر ہم قرآن پہاڑوں پہ اتارتے ایک بیچ والی دس دیں نکی چھوٹی سی بات درمیان سے نکال دیں آپ کو پھر پتہ چلے. اگر ہم قرآن پہاڑوں پہ نازل کرتے تو پہاڑ خوف الہی سے ڈر الہی سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے. تو معلوم ہو گیا اگر یہ قرآن پہاڑوں پہ اترے تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. اگر موسیٰ پہ اترے تو موسیٰ مدہوش ہو جائے گا. اگر امتی پہ اترے تو جل کے مر جائے گا. تو پھر مان لو قرآن کا حامل امتی نہیں ہو سکتا. قرآن کا وارث امتی نہیں ہو سکتا. موسیٰ علیہ السلام بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ مدہوش ہو گیا. بے ہوش نہیں. نبی بے ہوش نہیں ہوتے. ہزاروں نے بے ہوش کا ترجمہ کیا. نبی بے ہوش نہیں ہوتے. کوہ طور پہ بے ہوش نہیں ہوئے. مدہوش ہو کے کیفیت میں جب افاقہ ہوا پہلی لفظ کہی تو سبحان ہے. جو پہلی لفظ سبحان کہے وہ بے ہوش نہیں ہوتا. ٹھیک ہے سبحان اللہ. ڈر کے معنی خوف. ڈر خشیہ کے معنی بھی ڈر. تقوی کے معنی بھی ڈر. بس ختم. یہ بات ختم کرتا. ڈر ڈر جب ان کے معنی میں ہے. خشیہ اور تقوی کے ڈر میں فرق یہ ہے خشیہ کا ڈر ہوتا ہے گزشتہ زمانے کا. گزشتہ زمانے کا ڈر خشیہ کہلاتا ہے. آنے والا ڈر جو آخری سانس تک باقی رہے اس کو تقوی کا ڈر کہتے ہیں. سانس آخری سانس تک جو ڈر برقرار رہے اسے تقوی کا ڈر کہتے ہیں.